Hello everyone, welcome to my channel, and today in this video I am going to discuss each and every piece of information related to CUCET for both UG and PG students. All pieces of new information like CUCET syllabus for both UG and PG courses, eligibility criteria, list of universities that are taking part in CUCET mode for both UG and PG courses, and the mode of examination. Each and every necessary topic is going to be discussed here. So make sure that you are going to watch it till it's in. Friends, don't download the video, give it full time watch hours so that it would help me to complete my 4K watch hours within 12 months. And if you are among 89% of the viewers who don't subscribe the channel, just watch the video and go away, then do subscribe for the latest updates of all examinations related to UG, PG and PhD courses. For further details, check out the videos of the channel. जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजी कोर्सेज़ के लिए यूजीसी ने CUCET मोड के सिलेबस को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। बट मैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि CUCET एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑफिशियल डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन एंड द लाइक, मैं इन सभी न्यूज़ अपडेट का वेट कर रही थी। इस वीडियो में मैंने सारी न्यूज़ अपडेट्स को पार्ट वाइज डिवाइड किया है। First part of the news. The registration and application form for CUET, that is Central University Entrance Test, or CUCET, that is Central University Common Entrance Test, will be open from 2nd April to 30 April on the site cuet.samarth.ac.in. CUCET और CUET दोनों एक ही है। तो CUCET की रजिस्ट्रेशन दोनों UG एंड PG कोर्सेज़ के लिए 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जाएगी cuet.samarth.ac.in साइट पर। Second part of the news. All 45 central universities which are directly funded by UGC, that is University Grant Commission, are compelled to take part in CUET for UG courses like DU, JNU, BHU, AMU, Jamia and CU, that is Calcutta University and the like. List of universities is being provided on the screen. यूजी कोर्सेज़ के लिए सारे के सारे 45 यूनिवर्सिटीज़ को यूजी कोर्स में CUCET एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए यूजीसी ने कंपल्स यानी अनिवार्य किया है। स्टूडेंट कैन चूज़ द यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी while filling the application form or counseling for admission. स्टूडेंट अपने प्रेफरेंस यानी अपने मुताबिक या प्राथमिकता से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को चुन सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त या फिर एडमिशन के लिए काउंसलिंग करने वक्त। फॉर पीजी स्टूडेंट्स, पीजी कोर्सेज सेशन 2022 टू 2023 के लिए BHU CUET इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन लेने जा रही है, बल्कि DU ने इस सेशन के लिए DUET, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट मोड को ही जारी रखा है। JNU, AMU, जामिया जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है, बट UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि PG के स्टूडेंट भी CUCET देते हैं तो उस ऑप्टेन मार्क्स के बेसिस पर भी वे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकेंगे। ये उन्होंने उस यूनिवर्सिटीज़ पर छोड़ रखा है कि वे खुद का इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे या CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे या उसके मार्क्स को एडमिशन के दौरान कंसिडर करेंगे। Third part of the news. CUCET 2022 exam pattern and mode. CUCET is going to take computer based test, that is CBT mode, and questions are asked in objective pattern, that is multiple choice questions with negative marking. CUCET कंप्यूटर मोड में लिया जाएगा, पेन पेपर बेस्ड OMR शीट पर जैसे एग्ज़ाम्स होते थे उस तरह नहीं होगा और क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे यानी ऑप्शन चूज़ करने होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होगा और गलत आंसर टिक करने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। फोर्थ पार्ट ऑफ द न्यूज़, CUCET एग्ज़ाम पैटर्न फॉर UG कोर्सेज. CUCET exam will consist 4 key sections and the exam paper will consist of compulsory 3 papers, that is 2 language sections, 1 domain specific subject section and the general test section. CUCET में टोटल 4 सेक्शंस हैं, 2 लैंग्वेज सेक्शंस, एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेक्शन और एक जनरल टेस्ट सेक्शन।
सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज सेक्शन को ही दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B बनाया गया है। सेक्शन 1A में 13 अलग अलग भाषाएं हैं: तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। और सेक्शन 1B में इन सभी 13 भाषाओं के अलावे 19 भाषाएं हैं: फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, जर्मैनिक, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज़, रशियन एंड चाइनीज़। तो जो स्टूडेंट्स को सेक्शन 1A में दिए गए लैंग्वेज या भाषा की एग्ज़ाम देनी है वे सेक्शन 1A की किसी भी भाषा का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिनकी भाषा सेक्शन 1A में नहीं है वो देख ले, अगर उनकी भाषा सेक्शन 1B में है तो वे लोग उस भाषा की परीक्षा दे सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को उस भाषा की परीक्षा देनी है जो इन दोनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में नहीं है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको इन दोनों सेक्शंस में से जितनी भाषाएं दी गई हैं उनमें से ही किसी भाषा को चुनकर उसकी परीक्षा देनी होगी। आप जिस किसी भी भाषा को चुनते हैं उस भाषा की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इंग्लिश भाषा को चूज़ किया है तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा देनी होगी, जिसमें मुझे कुछ पैसेजेस, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, आइडियम्स, फ्रेजेस, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स जैसे टॉपिक्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट दोनों सेक्शंस को मिलाकर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 भाषाओं की परीक्षा दे सकते हैं। पेपर में दिए जाने वाले टोटल 50 क्वेश्चंस में से आपको अपने मुताबिक कोई भी 40 क्वेश्चंस ही बनाने हैं, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। हर एक लैंग्वेज का अलग अलग एग्ज़ाम होगा तो हर पेपर पर 45 मिनट्स दिए जाएंगे। सेकेंड सेक्शन है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर। ये सेक्शन में वो सब्जेक्ट्स रहेंगे जिससे आपको ग्रेजुएशन करना है, या वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इस पेपर में टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, जिनका लिस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकते हैं और हर सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होगा। हर एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको दिए गए 50 क्वेश्चंस में से केवल 40 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। क्वेश्चंस MCQ यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे और पूछे गए क्वेश्चंस आपके 12th NCERT सिलेबस पर ही बेस्ड होंगे। जिनकी सब्जेक्ट म्यूज़िक, आर्ट्स, थिएटर एट्सेट्रा है उन्हें प्रैक्टिकल भी देने होंगे। इस न्यूज़ को मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ओवरऑल यू हैव टू अटेन minimum 1 paper of language paper, and you may attempt maximum 3 papers in language paper including the both section 1A and 1B। यानी सेक्शन 1 लैंग्वेज पेपर में आप मिनिमम 1 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 पेपर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट दोनों सेक्शन 1A एंड 1B को मिलाकर 3 लैंग्वेजेस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। And in domain specific paper you have to attain minimum 1 subject examination and maximum you may attempt 6 subject examinations। So domain specific paper में minimum 1 subject का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और maximum 6 subject का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन है जनरल टेस्ट पेपर। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है और इस पेपर में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 60 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इसके क्वेश्चंस भी MCQ फॉर्म में रहेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ। इस पेपर का सिलेबस है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपसे बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या पजल टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। जिन लोगों ने 11th और 12th में बायोलॉजी लिया था तो आप लोग मैथ्स सुनकर पैनिक मत होना, क्योंकि मैथ्स के टॉपिक्स लाइक एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स क्लास 8 के सिलेबस तक ही आएंगे। फिफ्थ पार्ट ऑफ द न्यूज़, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। If any university permits students of previous year of class 12th to take admission
In the current year, such students would also be eligible to appear in CUET 2022 for UG courses. सो ये न्यूज़ उन ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोविड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किया एंड लास्ट ईयर उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो वैसे स्टूडेंट्स भी CUET 2022 टू 2023 सेशन फॉर UG कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल है। बट ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टूडेंट का एडमिशन लेगी और कौन सी नहीं। इस डिसीज़न के लिए यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सिक्स्थ पार्ट ऑफ द न्यूज़, CUCET सिलेबस फॉर PG कोर्सेज। CUCET PG कोर्सेज में टोटल 46 सब्जेक्ट्स लिया गया है, यानी PG में टोटल 46 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं और इन्हीं 46 पेपर्स में से आप जिस सब्जेक्ट से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकेंगे। CUCET सिलेबस को मेनली 2 सेक्शंस या 2 पेपर्स में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 है जनरल टेस्ट पेपर, जिसमें 25 MCQs होंगे और इस पेपर का टॉपिक है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स। और पेपर 2 उस सब्जेक्ट का होगा जिस सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करना है और इसमें आप 46 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स को आपने कम से कम 2 साल पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में। पेपर 2 में 75 MCQs होंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ और इसमें आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 7th पार्ट ऑफ द न्यूज़, CUCET eligibility criteria for both UG and PG courses। सो UG कोर्सेज़ के लिए जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CUCET मोड में, उनका 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं और SC, ST, OBC एंड PWD के स्टूडेंट का 45% होना चाहिए। इस परसेंटेज से आपके CUCET रिज़ल्ट या रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर PG कोर्सेज, जो स्टूडेंट्स PG कोर्स में एडमिशन के लिए CUCET देने जा रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 55% इन देयर ग्रेजुएशन फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और 50% फॉर SC, ST, OBC एंड PWD category in their graduation result. So that's it for today's video. Do subscribe and share among your friends and thank you for watching.